Can we share the heaven with all? Basanti joined as caretaker and helper in our house. When she first time came to our house, she was surprised and astonished to see air conditioning. And when she made food, she said कि PNG से खाना कैसे बनता है खाना? कभी PNG कभी गैस सिलेंडर नहीं देखा था. And when we inquired, we found out that there is no electricity in her village. There is a pole of electricity, but there is no electricity wire, and the villagers are waiting for electricity for last 10 years. So she said कि ये तो स्वर्ग है. So my question is, can we share our heaven? So are we living in heaven? Right? If for 10 minutes electricity is not there, let us assume the electricity lights go off, power cut is there. I will not be able to communicate with you, this mic will not work, these cameras will also not work, we will not be able to write and read properly. And if the power cut is long, then we will not be able to pump water also, we will not be able to eat food also. So the basic question is, how can we share the heaven with others? Can we share the heaven with all our fellow countrymen? So the answer is, the motto of the conference is energy for all. If you see the book, the name of the book, of conference book, we have made it energy for all. The question is, how do we share heaven with everyone? So what we have done is, we have devised, this is the precise objective of the conference. That is why I am telling all of you this thing. We have devised, 3 themes. First theme is, make in India new and renewable energy. Most of the equipments for new and renewable energy like solar have to be imported from other countries. They are not manufactured in India. So the difficulty is the costs, there is cost escalation. We have to encourage entrepreneurs to make equipments of new and renewable energy in India, so that the cost of electricity is reduced or the government targets they are achieved. First theme is there. After this session, the first theme will be this, then we'll discuss all these things. Second theme is produce in India power. So there is some requirement and there is some generation capacity. If the production of power is increased, so what will happen? It will automatically reach the right person where it should reach. If you just step 200 kilometers from Delhi, you will see there are power cuts, 2 hours, 3 hours, 10 hours, sometimes the power cuts are 20 hours. So in most of the places, the infrastructure is there, but there is no power. So if we are able to generate more power, automatically it will reach the last person in the village. Third theme of the conference is, find in India petroleum and energy gas. We are blessed with a huge landmass. We are a very lucky country. We have a huge, seas with us. Even ocean has been named after Indian Ocean. So we have so many islands. If we explore properly, find in India. If we try to find, we will find abundance of natural gas, energy gas, and petroleum. So our dependency on other countries will reduce drastically. So third scheme is, find in India petroleum and energy gas. If we find in India, it will contribute to energy security of the nation also, and it will give benefits to our citizens also. So these are the 3. So we come again to the basic question, can we share heaven with all? Yes, the answer is we can share heaven with all, and the objective is energy for all, and these are the 3 steps. If we follow, it will have a long-term repercussions in Indian society. This is the first conference, but whenever you progress to the second and third conference, you will see the outcome coming up. So what we will do is, we will deliberate on these 3 aspects, how to share heaven, and with these 3 things in mind, we will document it. We will document our suggestions for the whole day, whatever deliberations are going on. Conference outcome book will be prepared,
and it will be presented to Honorable President of India, and it will be shared with all the ministries, Ministry of New and Renewable Energy, Ministry of Coal, Ministry of Petroleum and Energy Gas, Ministry of Power. Then it will be shared with all the state governments, so that they have clear vision as to what we have to do so that the objective of energy for all is achieved. With these introductory remarks, with these thoughts, I welcome our esteemed guest, Honorable Justice Surendra Kumar, who is also chairperson of the International Energy Conference. He is Judicial Member, Appellate Tribunal for Electricity. We welcome His Excellency High Commissioner of Cyprus, Dr. Dimitrios Theoplaktou. He is guest of honor. We welcome Shri Sukesh Kumar Jain, Secretary Power, guest of honor, Government of NCT of Delhi. We welcome Manniya Anupriya Patel ji. She is Member of Parliament, dynamic leader, and she is also member of Standing Committee on Petroleum and Energy Gas. We are privileged to have amongst us experts from across the national and international energy spectrum. It is only with an open, wholehearted approach that the conference like this will be truly effective in enabling us to improve our knowledge and understanding in the energy sector. So finally, I summarize my welcome speech. Can we share the heaven with everyone? Answer is yes, we can do it by ensuring energy for all. How do we ensure energy for all? There are 3 steps. Make in India new and renewable energy, produce in India power, find in India petroleum and energy gas. So, yesterday I was discussing this matter with my wife, and she said, we are in this world to bring heaven down to earth. So I said, I'll just this will be my concluding remark. It is now an honor and privilege to declare officially open the TLA International Energy Conference 2016 and wish you fruitful deliberations. Thank you so much. Now I would like to introduce Mr. Satyendra Jain, Honorable Minister of Power, Government of NCT of Delhi. He is the Cabinet Minister in the Government of Delhi. Mr. Jain has also been involved in work with social welfare organizations Drishti and Sparsh. I request him to edify us regarding Indian power industry. Dignitaries on the dais and off the dais. देखिए, सबसे पहले तो जो पावर सेक्टर है हिंदुस्तान में, मैं दिल्ली का पावर मिनिस्टर हूँ, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। काफ़ी कंफ्यूजिंग सिस्टम है सारा। मुझे अब तक कोई खास चीज़ समझ नहीं आई है। और वो जरूरत नहीं है, कोई ऑर्डर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ क्यों नहीं आता है कि अकेला सेक्टर ऐसा है जहाँ पर कि इनएफिशिएंसी को रिवॉर्ड किया जाता है। आप जितने ज़्यादा इनएफिशिएंट होंगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस सेक्टर के अंदर कोई कंपटीशन की गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप कंपटीशन की बात करेंगे तो आप उठा के समुद्र में फेंक दिया जाएगा। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया गया है, आप घटिया से घटिया काम कीजिएगा, गलत से गलत काम कीजिएगा, आपको 16% रेट मिलेगा। कोई नहीं कहता कि आप अगर पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, 100 मेगावाट का लगा रहे हैं कि भी 500 करोड़ का लगाएं, 600 का लगाएं, 700, जितना ज्यादा का लगाएं उतना अच्छा है। एक्चुअली में अगर आपका 500 करोड़ का लगता है तो अकाउंट्स में अगर आप 800 करोड़ का दिखाएंगे तो यू विल बी बेनिफिशियल। तो हर तरीके से हर आदमी को बेईमानी करने के लिए एनकरेज किया जाता है, गलत काम करने के लिए एनकरेज किया जाता है और 16% का रेट का गारंटी दिया जाता है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर जिसको कहा जाता है सो कॉल्ड कि हम लोग इस ऐसी इकोनॉमी में रहते हैं जहाँ पे कंपटीशन को एनकरेज किया जाता है, इस सेक्टर के थ्रू कंपटीशन को खत्म किया जाता है। जनता को लूटने का सबसे बड़ा साधन है ये सेक्टर। दिस इज अ सेक्टर वेरी ओपेक। इसके अंदर कुछ नहीं पता लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं और हर चीज को जनता के ऊपर लाके छोड़ देते हैं लास्ट के अंदर कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम उसके लिए कर रहे हैं, कोई कुछ चीजें नहीं कर रहा है।
दिस इज अदर वे राउंड। अगर कहीं पर भी ये लिख दिया जाए, किसी भी ऑर्डर में आता है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया या पीपल एट लार्ज, इसका मतलब है डिस्कॉम या जनरेटर्स, उसके अलावा कोई नहीं। एट लार्ज मतलब बड़े लोग हैं, दे आर बिग कहना चाहिए था, लार्ज कह देते हैं उसको। तो सबसे पहली बात है कि मुझे ऐसा लगता है इसको वाकई में कॉम्पिटिटिव बनाने की जरूरत है। फंडामेंटल बात तो ये है। आज की डेट में मैं कहूँगा एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी काफी एफिशिएंट है बाकी प्राइवेट के मुकाबले में, मुझे ऐसा लगता है। कई सारे प्लांट लगाए गए हिंदुस्तान के अंदर। आज की डेट में मुझे बताया गया कैपेसिटी है 2,80,000 मेगावाट, और हम कैपेसिटी इंक्रीज करने की बातें कर रहे हैं और बनाने की बातें कर रहे हैं। भाई 2,80,000 मेगावाट के हमारे पास कैपेसिटी है और मैक्सिमम डिमांड उससे आती है, यानी 1,40,000 मेगावाट आइडियल पड़ा हुआ है, उसको चलाने की बात कोई नहीं करता। फिर से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं कि हम 6 लाख करोड़ खर्च करेंगे, 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे। क्यों करेंगे? कि भाई बैंकों में पैसा काफी है। अब जब तक बैंकों पैसा डिपॉजिट कराती है, उस पैसे को कहीं तो लगाना है ना, और फिर लेके कहते हैं इंग्लैंड भाग जाएंगे। अगर चल गया तो मेरा, नहीं चले तो जनता का। वो क्या है कि ये जो सेक्टर है, कई बार मैं सोचता था कि मैंने बिजनेसमैन पैसा क्यों लगा रहा है, बिजनेसमैन तो बेवकूफ नहीं होता। तो मैंने किसी सज्जन से पूछा भी ऐसे बेवकूफ कहां से मिल रहे हैं जो अभी भी लगाए जा रहे हैं। कहते सर कोई नहीं लगा रहा अपना पैसा, वो थोड़ी सी इक्विटी कैपिटल लगाते हैं अपनी, और उसके बाद सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खर्चा होता है 1,000 करोड़ का, खातों में दिखाते हैं 1,500 करोड़ का, 2,000 करोड़ का। चल गया तो मेरा और लुट गया तो जनता का। तो इस सेक्टर के अंदर मुझे लगता है कि जो आइडियल कैपेसिटी पड़ी हुई है पहले, एज ए नेशनल इंटरेस्ट में सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसे चल रहा है। अब बमाना की बात हो रही थी, हाई टेक प्लांट लगाया गया बमाना में, उसकी कैपेसिटी 1400 मेगावाट के आसपास है, 200 मेगावाट काम कर रही है, यानी 1200 मेगावाट आइडियल कैपेसिटी पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई थी? एक कंपनी है, जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत सारे रेट हाई थे, कहते मुझे इंटरनेशनल रेट चाहिए, अब ले लो ना। क्या 16 डॉलर में देंगे हम, तो सरकार ने $5.5 या $6 देगी दी है। आज इंटरनेशनल मार्केट में $2 का रेट है, पैसा $2 में दो ना, में बिजली दिल्ली के अंदर मुफ्त में बिजली दे देंगे। होता क्या है कि उनके लिए कोई कानून नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि कानून सबके लिए हो, क्योंकि आप लोग बैठे, मैं तो बस अपनी प्रॉब्लम बता सकता हूं जो मुझे समझ नहीं आ रही। भाई आप लोग बता सकते हैं कि कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। अगर एक कंपनी को आप लिवरेज देते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ गए तो इसके रेट बढ़ा दिए जाएं, इंटरनेशनल मार्केट में धड़ाम से नीचे गिर गए तो उसको भी कम कर दो ना। आपने प्लांट बंद कर रखे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जितने भी गैस बेस्ड पावर प्लांट सारे बंद पड़े, सारे बंद पड़े, क्यों? गैस नहीं है। गैस क्यों नहीं है? कि वो कंपनी गैस निकालती नहीं है, वो कहती है अब क्यों निकालूं मैं, अब तो घाटा होगा। तो इसके बारे में हम कैसे उसको मजबूर कर सकते हैं कि वो गैस निकाले और गैस हमें दे, ये भी देखने की जरूरत है। हम नए नए प्लान लगाए जाए। अभी हमारे को ऑफर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि हम आपको $7.5 में दे देंगे। कौन सा एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर? अरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट एक चमन नहीं दे रहे, बताइए कितना हमारे उसके अंदर वो दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं। आप हमारे को जो स्टैंडर्ड रेट है उस रेट पे गैस दीजिए, मैं सारा पावर प्लांट चलाता हूँ ना। हमें कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट से खरीद के उसमें सारे टैक्स लगा के, ये भी लगा के, खर्चा लगा के हम आपको दे देंगे। वो क्या आप कहते हैं हम भी ले लेंगे उस रेट पे, तो उससे हमें क्या मिलने वाला है? अरे भाई जो रेट पे आप स्टैंडर्ड गैस का रेट है उस रेट पे हमें दे दो, हम चला लेंगे। कहते वो कैसे चला लेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को जितने भी प्लांट बंद पड़े हैं उनको चलाने की सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए। 1 लाख मेगावाट से ज्यादा के प्लांट बंद पड़े हैं, उनको सबको चलाना हमारी एक नेशनल जरूरत भी है और चलानी भी चाहिए। बिजली अगर सस्ती नहीं होगी, देखिए देश की तरक्की 3 चीजों पर होती है, मेरा जो मानना है। स्टील के रेट क्या है, सीमेंट के रेट क्या है और बिजली के रेट क्या है। अगर इस देश के अंदर बिजली के रेट आज जो भी चल रहे से आधे कर दिए जाएं, सीमेंट के रेट पाकिस्तान के बराबर कर दिए जाएं और स्टील के रेट चाइना के बराबर कर दिए जाएं, तो इस देश को फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप तरक्की कर जाएगा। परंतु होता क्या है, होता क्या है, हम कहते हैं कंपटीशन जब हमें सूट करता है, जब सूट नहीं करता कहते हैं कंपटीशन तो बैकवर्ड। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्टील के रेट आज क्या है और हिंदुस्तान में क्या है आप देख लीजिए। और आर्टिफिशियल बैरियर्स खड़े कर रहे हैं सारे, ये भी करने दो ना, क्यों क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? एफिशिएंट अपने आप होगा इंडस्ट्री वाला। इंडस्ट्री में
एफिशिएंसी की बहुत सारी गुंजाइश है, परंतु जब उसको प्रोटेक्शन मिलता है तो एफिशिएंट नहीं होता बिल्कुल भी। पावर परचेज एग्रीमेंट्स की बात चल रही है कि जी आपने पावर परचेज एग्रीमेंट किया 25 साल का 30 साल का, आप इसको आपको ऑनर करना पड़ेगा। वेरी गुड, वन वे ऑनर जिसको करना पड़ेगा दिल्ली की जनता को, परंतु कंपनी चाहे उसको चेंज कर सकती है कभी, वो उसके पास है कि जी अगर हमको कॉस्टली सोलर पावर बना रहे हैं तो हमारे साथ बंडल करके दे सकते हैं। वो उनको पावर कैसे मिल गई? अगर वो यूनिलेटरली इसको चेंज कर सकते हैं तो हम उसको छोड़ के नहीं सकते। कहते नहीं आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि दिल्ली के लोग काफी अमीर है, तो कहते दिल्ली के लोग चुपचाप पैसे दे देते हैं, दिल्ली लोग छोड़ नहीं मिला, तो ये आप इनसे लूट लो। मेरा अपना ये कहना है कि पावर के अंदर जब दूध लेने जाते हैं मार्केट में 40 रुपए किलो, 42 रुपए किलो, 43 रुपए, 5% ऊपर नीचे मिलता है। बिजली एक ऐसी चीज है जो 22 पैसे यूनिट भी मिलती है और 12 रुपए यूनिट भी मिलती है। बागड़ा नगर डैम से 20-22 पैसे यूनिट है सर। आप लोग लॉस के सारे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अंदर की बातें अभी पता नहीं लगेंगी। और 22 पैसे यूनिट में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को खरीदती है वो भी घाटे में जाती है, और जो 10 रुपए में खरीदती है वो भी घाटे में जाती है, जो 5 रुपए में ला लेती है वो भी घाटे में जाती है। तो यानी उनको बैलेंस शीट में घाटा दिखाना मजबूरी है उनकी। अगर फ्री में दे देंगे, साथ में 5 रुपए भी देंगे कि 1 यूनिट बिजली ले लो, 5 रुपए लो, तो भी घाटा दिखाएंगे। उसका उससे कोई संबंध नहीं है कि उसको कितनी सस्ती मिलती है कितनी महंगी मिलती है। भागड़ा नंगल डैम से 22 पैसे यूनिट है तो घाटे में क्यों जा रहे जी? आगे बेच तो 3 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए बेच रहे हैं, तब भी घाटे में जाते सारे बिजली बोर्ड, क्योंकि वो बनाए गए हैं कि हॉली काउ, मिंटिंग मनी, पैसे कमाने का धंधा बना रखा है सबने। तो उन सबको पैसे के लिए कलेक्शन सेंटर बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चैलेंज इस बात का है लीगल फर्टिलिटी के पास कि इसकी तह में जाने की जरूरत है। वो क्या है? सिर्फ उन चीजों में नहीं कि जो आपके सामने लाया जाए, आपके सामने बहुत छोटी चीजें लेके आएंगे कि ये मेरा झगड़ा इससे, उसका झगड़ा इससे, उसको सॉल्व करते रहो। अब असली झगड़ा कहीं हो रहा है। असली झगड़ा तो ये है, ये जनता को लूटने का सेक्टर बना दिया गया है, क्योंकि बिजली के बिना काम चल नहीं सकता। अब एक चीज बताइए, दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री लगेगी क्या? 10 रुपए यूनिट की बिजली है, 10 रुपए यूनिट के अंदर बिजली खरीदेगा आदमी तो क्या करेगा? फिर चाइना से कंपटीशन कैसे करेगा? अगर कोई भी प्रोडक्शन है, कोई आइटम है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 20% पड़ती है और चाइना का रेट उससे आधा है या 1/3 है, उसको तो 7-8% का फर्क पड़ गया, कॉस्ट के अंदर कंपटीशन हो ही नहीं सकता। हमें इस सेक्टर के अंदर ध्यान देने की जरूरत है कि कम से कम ईमानदारी से काम हो सके। और मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा, जो लोग भी, काफी लोगों को नॉलेज होगी, मुझे कम है सही से बताऊं, और मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं तो अपने क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चन गलत रेज कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है, बुरा मत मानना जी, मैंने गलत क्वेश्चन उठा दिया, क्योंकि मुझे एक साल में कुछ समझ नहीं आया, पूरा धंधा बिल्कुल। मेरे पास आए, कहते जी कंफर्ट लेटर दे दो। मैंने किस चीज का दे दो कि 11,000 करोड़ रुपए का? भाई किस बात का? कैसा फॉर्मेलिटी है? मैंने फॉर्मेलिटी तो फिर जरूरत क्या है? 11,000 करोड़ का लोन मांग रहे हैं, मैंने गारंटी किस बात की है? ये कहते हमारे शेयर है 49% शेयर दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, 51% शेयर डिस्कॉम के पास है। तो मैंने कहा आपको 11,000 करोड़ का जो कंपनी लोन दे रही है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और जो कंसोर्टियम मिलकर दे रही है, तो इसका मतलब आपके शेयर्स की वैल्यू 20,000 करोड़ की तो होगी? हाँ सर होगी। तो मैंने कहा ऐसा करो, मेरे सारे शेयर 5,000 करोड़ में दे दो, मैं 20,000 करोड़ का सामान आपको 5,000 करोड़ में दे दो। नहीं सर ऐसे कैसे दे दें? 4 आने के शेयर नहीं हो, घाटे में जो कंपनी उसका शेयर की तो माइनस में बुक वैल्यू मिलेगी, और उनको 11,000 करोड़ का लोन सैंक्शन कर दिया उन्होंने, और कहते गारंटी मैं देता हूं। और जब गारंटी नहीं दी, कहते गारंटी नहीं देते। अरे क्यों दे दो? मेरे काम है क्या गारंटी देना? सरकार गारंटी नहीं देगी। सरकार ने जब दिल्ली को प्राइवेटाइज किया था, कंपनीज को 2 काम के लिए कहा कि एफिशिएंटली चला लो, अपना कैपिटल लेके आओ। अगर तुम कैपिटल लेके नहीं आ सकते, पैसा लेके नहीं आ सकते, एफिशिएंटली चला सकते, मेरा काम थोड़ा ये आपका काम है, मैं कोई गारंटी देने वाला नहीं हूँ। पूछ होना चाहिए आपकी गारंटी नहीं दे रहे, मैंने नहीं दी, कहते वो भाग जाएंगे। मैंने कहा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भाई? अगर उनको मेट्रो भी छोड़ के भाग गए थे, मैं रोक पाया क्या? कोई भागते तो रोक सकता है? कोई नहीं हो सकता। जिसको जो करना वही करेगा, जो सही लगेगा वो करेगा। परंतु इस सेक्टर में कमाई बहुत है, ये बताता हूँ। अकाउंट में हो या ना हो, लोग बताते हैं कि अच्छी खासी कमाई है, और वैसे भी ईमानदारी से देखो 16% रिटर्न तो ईमानदारी से भी है, बेईमानी छोड़ दो। किस बिजनेस के अंदर 16% रिटर्न मिलता है? आज की डेट में किसी बिजनेस के अंदर 16% रिटर्न नहीं मिलता। सिर्फ अकेला पावर सेक्टर जिसके अंदर 16% की गारंटी दी जाती है। आप जिसको सैलरी 2 लाख रुपए दे रहे हो ना जी, यार 10 लाख का चेक लेके
ताकि उस 8 लाख में भी 16% मिलेगा। तो आप चाहेंगे महंगे से महंगे लोग रखे जाए, महंगे से महंगा इक्विपमेंट खरीदा जाए। किसने कहा ये 100 करोड़ का इक्विपमेंट है, कहते भाई साहब बिल 200 करोड़ का। कहते क्यों कि मेरा 100 करोड़ पे 32% वापस आना चालू हो जाएगा। तो इस पूरे सेक्टर को इनएफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया गया है। और मैं चाहूंगा कि जो लोग मुस्कुरा रहे हैं कम से कम वो मेरा सहयोग करें, क्योंकि पता है वो मेरी बात को मान रहे हैं, इसका मतलब कि उनके पास कुछ ना कुछ है मुझसे ज्यादा। तो सहयोग करें। दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर जो ये पावर सेक्टर है इसके गड़बड़ झाले से पब्लिक को भी बताएं, हमें भी बताएं। और ये तो छोटी सी बातें कुछ लोग बता जाते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें और भी होंगी जो आप लोगों के पास आते होंगे। आप ऐसे कुछ ऐसे भी होंगे उनकी तरफ से लड़ रहे होंगे तो आपको अंदर की बात पता होगी। कई लड़े होंगे ना केस उनकी तरफ से, तो उनको अंदर का सब कुछ पता होगा कि कहाँ पे क्या किया होता है। तो आप बदल जाओ, अब जनता की तरफ आ जाओ, पहले उनकी तरफ। तो मैं चाहूंगा इस पावर सेक्टर को रिफॉर्म किया जाए, ट्रूली रिफॉर्म किया जाए। रिफॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि जनता कुछ लोगों के लिए पे करे। अभी तक मैंने जो स्टडी किया है पिछले 3 साल या 4 साल के अंदर स्टडी करने के बाद ये पता लगा है कि सारे रिफॉर्म सिर्फ कुछ लोगों के लिए किए जाते हैं, जनता के द्वारा, ताकि उनका काम ज्यादा अच्छी तरह चल सके। फॉर एग्जाम्पल अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 1,14,000 करोड़ रुपए के लोन माफ कर, और उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम तो खैर बताए नहीं जा सकते। क्यों नहीं बताए जा सकते? बड़े लोग हैं। एक किसान 50,000 रुपए का लोन ले ले तो फांसी लगानी पड़ती है और कोई इलाज नहीं है इसके पास। और जो 5,000 करोड़ का लिया 25 साल का 30 साल का, आप इसको आपको ऑनर करना पड़ेगा। वेरी गुड, वन वे ऑनर जिसको करना पड़ेगा दिल्ली की जनता को। परंतु कंपनी चाहे उनको चेंज कर सकते कभी, वो उसके पास है कि जी अगर हमको कॉस्टली सोलर पावर बना रहे हैं तो हमारे साथ बंडल करके दे सकते हैं। वो उनको पावर कैसे मिल गई? अगर वो यूनिलेटरली इसको चेंज कर सकते हैं तो हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। कहते नहीं आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि दिल्ली के लोग काफी अमीर है। तो कहते दिल्ली के लोग चुपचाप पैसे दे देते हैं, दिल्ली लोग छोड़ नहीं मिला, तो ये आप इनसे तो लूट लो। मेरा अपना ये कहना है कि पावर के अंदर जब दूध लेने जाते हैं मार्केट में 40 रुपए किलो, 42 रुपए किलो, 43 रुपए, 5% ऊपर नीचे मिलता है। बिजली एक ऐसी चीज है जो 22 पैसे यूनिट भी मिलती है और 12 रुपए यूनिट भी मिलती है। बागड़ा नगर डैम से 20-22 पैसे यूनिट है सर। आप लोग लॉस के सारे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अंदर की बातें अभी पता नहीं लगेंगी। और 22 पैसे यूनिट में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इसको खरीदती है वो भी घाटे में जाती है, और जो 10 रुपए में खरीदती है वो भी घाटे में जाती है, जो 5 रुपए में ला लेती है वो भी घाटे में जाती है। तो यानी उनको बैलेंस शीट में घाटा दिखाना मजबूरी है उनकी। अगर फ्री में दे देंगे साथ में 5 रुपए भी देंगे कि 1 यूनिट बिजली ले लो 5 रुपए लो, तो भी घाटा दिखाएंगे। उसका उससे कोई संबंध नहीं है कि उसको कितनी सस्ती मिलती है कितनी महंगी मिलती है। भागड़ा नंगल डैम से 22 पैसे यूनिट है तो घाटे में क्यों जा रहे जी? आगे बेच को 3 रुपए 2 रुपए 2.5 रुपए बेच रहे हैं, तब भी घाटे में जा रहे सारे बिजली बोर्ड, क्योंकि वो बनाए गए हैं कि हॉली काउ, मिंटिंग मनी, पैसे कमाने का धंधा बना रखा है सबने। तो उन सबको पैसे के लिए कलेक्शन सेंटर बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चैलेंज इस बात का है लीगल फर्टिलिटी के पास कि इसकी तह में जाने की जरूरत है। हो क्या है? सिर्फ उन चीजों में नहीं कि जो आपके सामने लाया जाए। आपके सामने बहुत छोटी चीजें लेके आएंगे कि जी मेरा झगड़ा इससे, उसका झगड़ा इससे, उसको सॉल्व करते रहो। अब असली झगड़ा कहीं हो रहा है। असली झगड़ा तो ये है कि जनता को लूटने का सेक्टर बना दिया गया है, क्योंकि बिजली के बिना काम चल नहीं सकता। अब एक चीज बताइए, दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री लगेगी क्या? 10 रुपए यूनिट की बिजली है। 10 रुपए यूनिट के अंदर बिजली खरीदेगा आदमी तो क्या करेगा? फिर चाइना से कंपटीशन कैसे करेगा? अगर कोई भी प्रोडक्शन है, कोई आइटम है जिसके अंदर की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 20% पड़ती है और चाइना का रेट उससे आधा है या 1/3 है, उसको तो 7-8% का फर्क पड़ गया, कॉस्ट के अंदर कंपटीशन हो ही नहीं सकता। हमें इस सेक्टर के अंदर ध्यान देने की जरूरत है कि कम से कम ईमानदारी से काम हो सके। और मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा, जो लोग भी, काफी लोगों को नॉलेज होगी, मुझे कम है सही से बताऊं, और मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं तो अपने क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ कि भाई उसमें मैं गलत रेज कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है, बुरा मत मानना जी मैंने गलत क्वेश्चन उठा दिया, क्योंकि मुझे एक साल में कुछ समझ नहीं आया, पूरा धंधा बिल्कुल। मेरे पास आए, कहते जी कंफर्ट लेटर दे दो। मैंने किस चीज का दे दूं कि 11,000 करोड़ रुपए का? भाई किस बात का? कैसा फॉर्मेलिटी है? मैंने फॉर्मेलिटी तो फिर जरूरत क्या है? 11,000 करोड़ का लोन मांग रहे हैं। मैंने गारंटी किस बात की है? ये कहते हमारे शेयर है 49% शेयर दिल्ली गवर्नमेंट के पास है,
51% शेयर डिस्कॉम के पास है। तो मैंने कहा भाई आपको 11,000 करोड़ का जो कंपनी लोन दे रही है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और जो कंसोर्टियम मिलकर दे रही है, तो इसका मतलब आपके शेयर्स की वैल्यू 20,000 करोड़ की तो होगी? हाँ सर होगी। तो मैंने कहा ये ऐसा करो, मेरे सारे शेयर 5,000 करोड़ में दे दो, मैं 20,000 करोड़ का सामान आपको 5,000 करोड़ में दे रहा हूँ। नहीं सर ऐसे कैसे ले लें, 4 आने के शेयर नहीं हो, घाटे के लिए कंपनी उसका शेयर की तो माइनस में बुक वैल्यू मिलेगी, और उनको 11,000 करोड़ का लोन सैंक्शन कर दिया उन्होंने, और कहते गारंटी मैं देता हूँ। और जब गारंटी नहीं दी कहते गारंटी नहीं देते। अरे क्यों दे, तुम्हें मेरे काम है क्या गारंटी देना? सरकार गारंटी नहीं देगी। सरकार ने जब दिल्ली को प्राइवेटाइज किया था, कंपनीज को 2 काम के लिए कहा कि एफिशिएंटली चला लो, अपना कैपिटल लेके आओ। अगर तुम कैपिटल लेके नहीं आ सकते, पैसा लेके नहीं आ सकते, एफिशिएंटली चला सकते, मेरा काम थोड़ा है, ये आपका काम है, मैं कोई गारंटी देने वाला नहीं हूँ। कुछ होना चाहिए आगे गारंटी नहीं दे रहे, मैंने नहीं दी। कहते वो भाग जाएंगे, मैंने कहा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भाई? अगर उनको मेट्रो भी छोड़ के भाग गए थे, मैं रोक पाया क्या? कोई भागते तो रोक सकता है? कोई नहीं हो सकता। जिसको जो करना वही करेगा, जो सही लगेगा वो करेगा। परंतु इस सेक्टर में कमाई बहुत है, ये बताया अकाउंट में हो या ना हो, लोग बताते हैं कि अच्छी खासी कमाई है, और वैसे भी ईमानदारी से देखो 16% रिटर्न तो ईमानदारी से ही है, बेईमानी छोड़ दो। किस बिजनेस के अंदर 16% रिटर्न मिलता है? आज की डेट में किसी बिजनेस के अंदर 16% रिटर्न नहीं मिलता। सिर्फ अकेला पावर सेक्टर जिसके अंदर 16% की गारंटी दी जाती है। आप जिसको सैलरी 2 लाख रुपए दे रहे हो ना जी, यार 10 लाख का चेक लेके, ताकि उस 8 लाख में भी 16% मिलेगा। तो आप चाहेंगे महंगे से महंगे लोग रखे जाए, महंगे से महंगा इक्विपमेंट खरीदा जाए। किसने कहा ये 100 करोड़ का इक्विपमेंट है, कहते भाई साहब बिल 200 करोड़ का। कहते क्यों? कि मेरा 100 करोड़ पे 32% वापस आना चालू हो जाएगा। तो इस पूरे सेक्टर को इनएफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया गया है, और मैं चाहूंगा कि जो लोग मुस्कुरा रहे हैं कम से कम वो मेरा सहयोग करें, क्योंकि पता है वो मेरी बात को मान रहे हैं। इसका मतलब कि उनके पास कुछ ना कुछ है मुझसे जाना, तो सहयोग करें। दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर जो ये पावर सेक्टर है, इसके गड़बड़ झाले से पब्लिक को भी बताएं, हमें भी बताएं। और ये तो छोटी सी बातें, कुछ लोग बता जाते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें और भी होंगी जो आप लोगों के पास आते होंगे। आप ऐसे कुछ ऐसे भी होंगे उनकी तरफ से लड़ रहे होंगे, तो आपको अंदर की बात पता होगी। कई लड़े होंगे ना केस उनकी तरफ से, तो उनको अंदर का सब कुछ पता होगा कि कहाँ पे क्या किया होता है। तो आप बदल जाओ, अब जनता की तरफ आ जाओ, पहले उनकी तरफ। तो मैं चाहूंगा कि इस पावर सेक्टर को रिफॉर्म किया जाए, ट्रूली रिफॉर्म किया जाए। रिफॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि जनता कुछ लोगों के लिए पे करे। अभी तक मैंने जो स्टडी किया है, पिछले 3 साल या 4 साल के अंदर स्टडी करने के बाद ये पता लगा है कि सारे रिफॉर्म सिर्फ कुछ लोगों के लिए किए जाते हैं, जनता के द्वारा, ताकि उनका काम ज्यादा अच्छी तरह चल सके। फॉर एग्जाम्पल, अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 1,14,000 करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए, और उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम तो खैर बताए नहीं जा सकते। क्यों नहीं बताए जा सकते कि बड़े लोग हैं? एक किसान 50,000 रुपए का लोन ले ले तो फांसी लगानी पड़ती है, और कोई इलाज नहीं है इसके पास। और जो 5,000 करोड़ का 5,000 करोड़ वाले भी हैं, 2,000 करोड़ वाले भी हैं, 500 करोड़ वाले भी हैं। आप में से कौन ऐसा आदमी है जिसने कि 1 लाख रुपए बैंक के मारे? हाथ रखा सर, अगर 1 लाख रुपए बैंक के मारे तो यहाँ नहीं आते, जरूरत ही नहीं होती। बड़े आदमी देखो, बैंक के पैसे वो मार सकता है जो सैकड़ों करोड़ की बात करे। बैंक के पैसे लाखों वाला, हजारों वाला नहीं मार सकते। कुर्की कर लेंगे, उसके घर पे बाउंसर भेज देंगे, सब कुछ कर देंगे, सारे काम करते हैं, कपड़े उतार लेंगे। जिसके पास 100 करोड़ या उससे ज्यादा है वो बैंक के पैसे मार सकता है, उससे कम पैसे बैंक के नहीं मार सकता। कोई 100 रुपए मार के दिखा दे। मुझे समझ नहीं आती कि बैंक वाले 100 करोड़ वाले के तो घर पे सर्दी करते हुए जाते हैं, उसके बाहर कुत्ता भौंक रहा होता है, अंदर नहीं घुसते। और जो 100 रुपए ले ले उसके घर पे बाउंसर भेज देते हैं। तो ये क्या हम लोकतंत्र से कहते हैं क्या? और मुझे सोचने की जरूरत है। मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, देखिएगा मैं पिछले 5 साल बाद पहले डिसइल्यूजन हुआ था बहुत ज्यादा इस सोसाइटी ने। मैं तो कुछ भी नहीं था, टीचर का बेटा हूँ, बचपन में बहुत गरीबी देखी है। मैं इतना डिसइल्यूजन हुआ कि मैं आर्किटेक्ट बन गया। मैं कर क्या रहा हूँ? बड़े लोगों की सेवा कर रहा हूँ। किसी का महल बना रहे हैं, किसी के लिए कुछ बना रहे हैं, किसी के लिए कुछ बना रहे हैं। जनता के लिए क्या कर रहे हैं? गरीब आदमी तो मेरे पास आता नहीं था, डरता था वो आते हुए कि भाई इतने बड़े आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट में कैसे फीस कौन देगा। तो मुझे ये लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, ज्यादातर प्रोफेशनल्स सिर्फ बड़े लोगों की नौकरी कर रहे हैं। अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि हम गुलाम पैदा हुए थे कि आजाद पैदा हुए थे। हम आज गुलाम हैं या आजाद रहना चाहते हैं? अगर आजाद हैं
तो अपने मन के लिए काम करो, गुलामी बंद करो। अगर आपको ये कहते हैं पैसा दे उसके लिए जो मर्जी कर दें, ऐसे क्यों कर दें? तो मैंने तो सोच लिया था जब मेरा 47th बर्थडे था, मैंने कहा था कि 50 साल का होने के बाद आई विल नॉट वर्क फॉर मनी, दो आई विल वर्क बट नॉट फॉर मनी। और 50 साल से पहले ही तो अच्छा बढ़िया हुआ कि अन्न आंदोलन स्टार्ट हो गया तो मुझे 50 साल पूरे नहीं करने पड़े, उससे पहले छोड़ दिया सब कुछ। काम करूंगा पर पैसे के लिए नहीं करूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों में दम है, कहो ना बहुत हो गया, क्या रखा है? एक भी आदमी सभागार में नहीं बैठा जो ये कहे कि अगर जिस दिन भी जाऊंगा इस दुनिया में से माइनस में जाऊंगा, कुछ लोग छोड़ के जाओगे ना, अरे 1 0 कम 1 0 का, कुछ ऐसा करके जाओ जो आपके दिल के पास है। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, हमेशा ये लगता था मैं दुनिया को सुधार दूंगा, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, और अल्टीमेटली क्या होता है, हम दूसरों की नौकरी करते रह जाते हैं। तो कहते मैं तो नौकरी नहीं करता, मैं तो इंडिपेंडेंट। कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए नौकरी कर रहे हैं, पहले कोई एक बॉस होता है 100 बॉस है, आपके क्या फर्क पड़ता है? जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके दिल में ये होता है कि मैं ऐसा कोई रिफॉर्म कर दूँ, मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करूँ। अरे जो काम कर रहे हैं वो भी करते रहिए। 10% अपने जीवन का समय, कम से कम 10% समय आप अपने दिल के लिए लगाइए, जहाँ पे आपका दिल है। अगर आपका दिल यहाँ पर है कि मैं कोई लॉ चेंज कराना चाहता हूँ, कोई सिस्टम चेंज कराना चाहता हूँ, तो 10% समय उसके लिए लगाइएगा, आज से लगाइएगा। वेट मत करना कि 70 साल के होंगे तब करेंगे, वो 70 साल आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। तो बस मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 10% समय हमें दीजिएगा, देश को दीजिए, जनता को दीजिएगा और अपने दिल को दीजिएगा, जहाँ पे आपका दिल। और दिल हमेशा सही होता है, दिमाग नहीं होता। कई बार दिमाग बड़ा थोड़ा चंचल होता है, दिमाग हमेशा थोड़ा सा वो होता है ना, लॉजिक पे चलता है। और लॉजिक तो ये देखो वकील है, लॉजिक हर चीज का मिल ही जाता है। तो अगर आप गलत काम करेंगे उसका भी लॉजिक मिल जाए, दिल को नहीं मिलेगा, दिल से जुड़ता है। तो 10% अपना समय अपने दिल को दे दीजिएगा। और पावर सेक्टर के अंदर जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे तो बहुत सारे लोग हैं और इतने सारे वकील, अगर 10% समय देंगे तो इस सेक्टर तो रिफॉर्म अपने हो जाएगा। इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, रिफॉर्म हो सकता है। और खुल के अपने विचार रखिएगा, जैसे मैं तो खुल के कहता हूँ, जो भी मन करता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कहते हैं कि आप मंत्री बन गए, एक्टिविस्ट की तरह बिहेव करते हो। मैंने है तो करते हैं भाई, मंत्री बनने के बाद बदल थोड़ा गए, जैसे पहले थे वैसे आज। अगर हम बदलने आए थे फिर तो सिस्टम नहीं बदलने वाला। हम सिस्टम को बदलने के लिए आए हैं, सिस्टम को हम बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे कि हमें सिस्टम बदल देना, ऐसी चीज के नहीं बनेगी। तो सर खुल के कहिएगा, इस देश को आजाद कराने वाले लोग वो मेरे सामने बैठे। इस देश को आजाद कराया था वकीलों ने। आप ये आपने हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिएगा, जितने भी क्रांतिकारी हुए, जितने भी बड़े बड़े नेता हुए, कम से कम 50% वकील थे। आप अपनी लेगेसी को देखिएगा। अब उस आजादी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है। आजादी तो दिलवा दी थी और दिलवाने के बाद खुद ही गुलाम हो गए। किस चीज के गुलाम हो गए? छोटी छोटी चीजों कि ये बड़ा सा पद मिल जाए, छोटा सा ये मिल जाए, बंगला मिल जाए, या थोड़ी सी फीस मिल जाए, थोड़ी और ज्यादा फीस मिल जाए। अरे सर वो मिलती रहेंगी, बड़े चीज से नीचे क्यों आ रहे? जब यहाँ से जाओगे कुछ नहीं जाने वाला, सब खाली हाथ, जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। तो 10% समय अपना दीजिएगा और अपने दिल को दीजिएगा और फिर देखिएगा क्या मजा आता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मिलकर इस सेक्टर को रिफॉर्म करने का मौका मिले और ट्रूली रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि बड़े कुछ 4-5 लोगों के लिए रिफॉर्म कर दिया जाए, उस रिफॉर्म की बात मैं नहीं करता कि 5 लोग बैठे हैं उनके लिए रिफॉर्म हो गया। उस रिफॉर्म में विश्वास बिल्कुल नहीं करता हूँ। जनता के लिए रिफॉर्म हो और इसके अंदर बिजली के रेट, देखो अल्टीमेटली क्या होता है, अगर बिजली के रेट कम हो रहे हैं तो आपने काम किया, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों ने उसको एडजस्ट किया। एडजस्टमेंट बंद हो जाए, बिजली के रेट कम हो जाए, जितने प्लांट बंद पड़े सारे चल पड़े तो रेट आते वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं, सब आराम से हो जाएगा। परंतु चलाने में इंटरेस्ट किसी का नहीं है। मुझे तो सरकारों का इंटरेस्ट नहीं लगता, इंडस्ट्रीज का तो बिल्कुल है ही नहीं। कहते बंद रहे तो अच्छा है, इसको कहते उसमें डाल देंगे, आता है वो कंपनी बना के 22 साल उसमें डाल के पैसा सामने रीस्ट्रक्चरिंग करे, सबको पता है, अब तो सबको बोलेंगे। तो वो चीजों में आनंद नहीं है। देश को आगे बढ़ाइएगा, नए प्लांट भी लगाओ, परंतु पहले पुरानों को चला के लगाओ। ये तो मतलब अगर मेरे घर के अंदर एक गाड़ी खड़ी है, दूसरी गाड़ी भी है, तीसरी गाड़ी भी है, मेरा चौथी हो रही, लोग कहते क्यों कि 2 गाड़ियां चल नहीं रही, क्यों नहीं चल रही? पेट्रोल नहीं है। ये तो गलत बात है। अरे नहीं लाऊंगा उसमें तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, या वो बिना पेट्रोल के चलेगी, धक्का मारने से चलेगी। तो ये देखने की आवश्यकता है कि देश का पैसा ऐसे बर्बाद ना किया जाए। हमारे देश में किसी भी चीज को 2 चीजों में नापा जाता है। पहला,
कितना पैसा खर्च किया। किसी भी सरकार की अच्छाई बुराई सिर्फ एक ही चीज पे देखते हैं, कितना पैसा खर्च किया है। दूसरा, कितने लोगों को नौकरी लगाया, बस आउटपुट कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता आपसे क्या आउटपुट किया। इसीलिए सरकारें बड़ी स्मार्ट हो गई। वो ये कहती हैं कि 1 लाख मेगावाट के प्लांट बंद पड़े, कोई चिंता मत करो, 1 लाख के नए और लगाओ, ताकि हम कह सकें देखिएगा हमारी सरकार ने इतने साल के अंदर इतने लाख मेगावाट के प्रोजेक्ट पास कर दिए और नए बना दिए, और सारी जगह तालियां तालियां तालियां, और कह दो 1 लाख मेगावाट के नए प्लांट। अरे जो बने पड़े थे वो चला के नहीं देते। मुझसे पूछते बार बार कि पीडब्ल्यूडी में नए प्रोजेक्ट क्या किए। मैंने कहा नया ये किया कि जितने फ्लाईओवर बन रहे थे वो चालू कर दिए, बना दिए। नया क्या किया? मैंने कहा नया ही है, जो 5 साल में नहीं बनते थे मैंने सिर्फ 1 साल में बना दिया। क्या सर नया क्या बनाया? मैंने बस इतना ही नया है कि सर जो चल रहे हैं किसी ने भी स्टार्ट किया तो खत्म तो कर लो। हम नए आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़ की खत्म करें, रियल चीज की आगे बढ़े कि हम इस चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। अब मुझसे मैं मोहल्ला क्लिनिक खोल रहा हूँ, आपने सुना होगा मोहल्ला क्लिनिक के बारे में। मुझसे आगे अक्सर मीडिया वाले पूछते हैं सर कितना पैसा खर्च होगा? मैंने फ्री में, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने भी 5 करोड़ में बनती थी एक डिस्पेंसरी, मैं 20 लाख में बना रहा हूँ तो फ्री होगी। कहते ऐसे 20 लाख में कैसे बना दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सिंपल सी बात है कि आउटपुट देखो। आपने एक फैक्ट्री लगाई तो देखो बिजली बनी नहीं बनी, कितने रेट में बनी। मैंने कहा मैंने देखी आउटपुट कि आप जाइएगा मेरे मोहल्ला क्लिनिक में जाइएगा, डॉक्टर देखेगा, आपको टेस्ट किए जाएंगे, आपको दवाई मिल जाएगी, और कितने लोगों को मिल सकती है, वो आउटपुट है। कहते हाँ वो तो ठीक है जी। अरे मुझे इतनी 4 मंजिल की बिल्डिंग इसलिए चाहिए, हमारी डिस्पेंसरी 4 मंजिल की बना दी, ग्राउंड फ्लोर पे डिस्पेंसरी चलते, 3 फ्लोर पे स्टोर बना रखे। उस स्टोर की पेमेंट जनता क्यों करे? और अस्पताल में जो डिस्पेंसरी में गए 1 डॉक्टर चाहिए आपको, उसके साथ 20 स्टाफ क्या करेगा? 2 या 3 लोग काफी। तो हमने बना दिया। हमारी रनिंग कॉस्ट भी 20% पे आ गई, हमारी कैपिटल कॉस्ट 5% 10% पे आ गई, और आउटपुट जो है जिस कॉस्ट में हमारी एक ओपीडी दिल्ली सरकार की ओपीडी जिसमें डॉक्टर कंसल्टेशन है, दवाई है और टेस्ट है 500-600 रुपए की पड़ती है। हमारा टारगेट है मोहल्ला क्लिनिक में हम 100 रुपए से नीचे करेंगे, जिसके अंदर 212 टेस्ट करेंगे, और टेस्ट उसमें 1000 रुपए वाले टेस्ट नहीं है, 1500 रुपए वाले टेस्ट नहीं है। एवरेज सारा जो प्रोसेस सब कुछ मिला के 100 रुपए से नीचे लेके आ रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही। कहते सर दिल्ली सरकार का कोई लॉटरी लग गई क्या, या दिल्ली सरकार पागल हो गई है, सब कुछ फ्री करे जा रही है? कुछ नहीं हुआ जी। अगर बेईमानी खत्म करो तो पैसे की कोई कमी नहीं सरकार, नियत की कमी है, उनकी नियत खराब है। हर जगह पैसा बनाने की मशीन चाहिए उनको। अरे सरकार जनता इतना पैसा दे रही है टैक्स के रूप में, पैसे की कमी थोड़ा है, उसको ठीक से खर्च करो। हम क्या कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खर्च करो, कि भाई बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओ, ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ कि पुराने तो भूल जाओ और नए बना दो, पैसा मिट्टी में लगा दो। वो हम नहीं करने वाले। कई लोग मुझसे कह रहे थे कि आपके पिछले साल पैसे बच गए। हाँ नहीं बच गए। मैंने कहा रिश्वतखोरी तो नहीं करनी थी। मैंने जनवरी में कह दिया सबको बुला के कि जनवरी फरवरी मार्च जितने बिल बनाओगे सबको चेक कराऊंगा। होता क्या था, फरवरी और मार्च में पूरे साल का खर्चा कर दिया। ऐसा हो सकता है कि 10 महीने में कुछ नहीं किया, 2 महीने में कुछ खर्च हो गया। झूठे बिल बनते थे, कोई झूठे बिल बने नहीं, पैसे बच भी गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, सरेंडर कर दूंगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे को देखना चाहिए आउटपुट के ऊपर, सिस्टम के अंदर नहीं घूमना। यहाँ पर इनपुट है और बीच में सिस्टम चल रहा है, और यहाँ पे आउटपुट है। होता क्या है, सारी ब्यूरोक्रेसी में, सारे सरकारों में सिस्टम के अंदर इनपुट तो है और अंदर घूमता रहता है, बाहर कुछ निकलता ही। सिस्टम के अंदर घूमते रहेंगे, इतना सारा सिस्टम, इतना सारा सब कुछ, इतना ज्ञान देते हैं, और इतना उनसे पूछे हुआ क्या, कहते तो कुछ नहीं हुआ। मैंने 9 महीने में तो भगवान भी दे देता है, तुम तो कहते 10-10 साल हो जाते कुछ भी नहीं होता। ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनी हुई है, ऐसी ऐसी चीजें बना के रखी हुई हैं। एक वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना रहे हैं हम लोग, 2006 से चल रहा है, 10 साल तो हो गए, अब हम धक्का दे रहे हैं। मैंने 10 साल हो गए, मेरा आइडिया नहीं है, आइडिया किसी और का है, पर मैं तो उस आइडिया को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ डिलीवर होना चाहिए, बिना डिलीवरी के कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ प्रोसेस, हमारे लिए प्रोसेस को इतना सेक्रोसेंट माना जाता है, प्रोसेस तो भगवान की तरह से माना जाता है। प्रोसेस बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मुझे सारी ब्यूरोक्रेसी समझाती है, सिस्टम ठीक होना चाहिए। मैंने ऐसा होता तो गलती ना हो जाए। मैंने क्यों ना हो जाए? अगर गलती करना पाप है तो सारे जज को जेल में होना चाहिए। कहते कैसे? मैंने कहा लोअर कोर्ट फैसला देती है, हायर कोर्ट बदल देती है, तो उसको जेल में क्यों नहीं भेजते? भेजते नहीं ना। हाई कोर्ट फैसला देती है, सुप्रीम कोर्ट बदल देती है। तो इसमें फैसला लेना गलत नहीं है। हमने सिस्टम ऐसा बना दिया ब्यूरोक्रेसी के अंदर, फैसला मत लो। अगर फैसला लोगे तो परफेक्ट होना चाहिए,
परफेक्ट कैसे हो सकते हैं? 100 में से 100 नंबर हमेशा आ सकते हैं क्या? अब जितना मर्जी मेहनत कीजिए, जितना मर्जी अच्छा कीजिए, 100 में से 99 रह जाएंगे, 95 रह जाएंगे, 95 पे भी पास होने लगेगा। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर नीयत गलत है तब तो गलत है। अगर आपने पैसे खाए हैं तो गलत है, वरना डिसीजन आप 100 ले रहे हैं, 200 डिसीजन में छोटा मोटा गलती भी हो सकती है, ठीक कर लेंगे उसको, उसमें क्या दिक्कत है? हम तो काम करने में लगे हुए, डरने रहे बिल्कुल। कुछ ऑफिसर बैठे हैं इधर भी, हमारे ऑफिसर बैठे हैं, पता होगा। मैं तो सीधा लिख देता हूँ, लिखित में आदेश देते हैं, वर्बल नहीं देते। कई लोग कहते हैं हमारे पहले के उन्होंने टीवी पे बोला कि मंत्री जी प्रेशर डालते हैं। मैंने हाँ जी बिल्कुल, प्रेशर डालने के लिए पैदा हुए हैं, इसीलिए आए, जनता ने इसलिए भेजा है। और लिखित में प्रेशर देते हैं, कोई अपना पर्सनल काम नहीं कराते सर। लिखित में कहते हैं ये काम करिएगा, और मैं रात को 2 बजे बैठा तो मैं बैठना पड़ेगा। क्यों नहीं बैठोगे? काम करना पड़ेगा। ये कोई वो नहीं है कि जी आप आ गए तो आराम करेंगे या राज करेंगे। हमारे देश में एक सिस्टम बनाया गया राज करने के लिए, काम करने के लिए। अंग्रेज छोड़ के गए थे राज, हमने उसको राज को लेगेसी में दे दिया कि हम भी राज करेंगे। अरे राज करने नहीं आए, काम करने आए हैं, परंतु सिस्टम राज करने के हिसाब से बनाए। अगर आपने राज करना हो तो खूब मौज करो, सब आगे आप पीछे इधर उधर आप घूमते रहे। जैसे आप काम करने की बात करते हैं, कहते हैं ये क्या होता है? तो उस सिस्टम को चेंज करना है, और उसके अंदर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनकी सहयोग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। किसी भी सोसाइटी को, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने वाले लोग लेस देन 1% होते हैं, कई बार तो 0.1% होते हैं। आप लोग तो सारे 0.1% वाले हैं। तो आप सबकी जिम्मेदारी है अपने साथ साथ इस सोसाइटी को, इस देश को आगे ले जाने। बस यही रिक्वेस्ट है कि जो आपके दिल के पास है वो अपने दिल के लिए काम कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।